Second day spoken class, we will know about catching up with a friend. So there are many questions and phrases. Here is long time no see. It's so good to see you. It's so good to see you too. I was just thinking about you. Through these phrases, you can understand something. How can you express? How can you say something to anyone? Okay? How have you been? Here is a question. How have you been? I have been. आप इस तरह का क्वेश्चन जब आपसे पूछा जाता है या तो आप एनालाइज करते हो, then you can ask how have you been, then you have to answer. आप आंसर कर सकते हो I have been good, I have been really busy, I have been better, I have been whatever you want to say. You can make your sentence with this phrase. Okay, now here is a question. How is life? How is life? It's good. Life is good. Life's great. Life is great. It's totally depend on you. यानी आप जब क्वेश्चंस का आंसर देते हो तो क्वेश्चंस का आंसर देते समय ये आप पर डिपेंड होता है कि आप किस तरह से आंसर का रिप्लाई करते हो. क्वेश्चंस यहाँ इस तरह से आपसे आती है और आने के बाद आपके पास आंसर देना आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से आंसर दे रहे हो. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर. What have you been up to? What have you been up to? Notice, same old, same old. I have been working on a new project. I have been working on a new project. How is your day going? कैसा समय जा रहा है, कैसा दिन जा रहा है, बस ऐसे ही पूछा जा रहा है. जनरली क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है. नॉट सो वेल. यदि आपका अच्छा नहीं जाता है तो आप बताइए कि बहुत अच्छा नहीं जा रहा है. नॉट सो वेल. इट्स गुड. इट्स गोइंग वेल. बहुत अच्छा जा रहा है. Otherwise, you can say also going well. It's going well. Going well. You can say it's going really well. या बिल्कुल बहुत अच्छा जा रहा है. यानी आपका समय कैसा बीत रहा है? बहुत अच्छा जा रहा है. Now here is a question. How is your family doing? How is your family doing? Then there is a question mark. यहाँ पर question mark है और इस तरह से question जब आपसे पूछा जाता है या आप question जब पूछते हो, then you have to answer right in this way. My family is doing well. My family is doing really well. Thanks for asking. They are doing well. बहुत अच्छा कर रहे हैं. Everyone is doing well except for my brother. यानी आपका सब कुछ अच्छे आपके घर में कर रहा है लेकिन कोई पर्सन है जो कि अच्छा नहीं करता. यदि आप बोलोगे कि यदि आप इसके बारे में भी नहीं बोलना चाहते हो, then you have to speak only everyone is doing well. यानी सबके सब अच्छा काम है. He has been feeling very sick lately. If you are talking about anyone, then according to this you have to make a sentence because you have told already except my brother. This is masculine gender. So here you have used he has been. If girl or any name, then you have to say she has been feeling. जो भी आपका next sentence बनता है according to situation, according to your uh, information, you can verify anything. Okay. Now next question is, are you still working at the same place? This type of question asked many times. Are you still working at the same place? क्या अभी भी आप अभी तक उसी जगह पर काम कर रहे हो? Then you have to answer yes. आप सिर्फ yes भी बोलते हो तब भी आपका सही बनता है. Yes, I am in my home. Yes, I am working. No, I am not working. No, I am working. आप जहां भी नोट आप कर रहे हो. ओके. एट सेम स्कूल. एट अपना स्कूल का नाम बताओ. एट सेम ऑफिस, सेम कंपनी या लोकेशन. इस तरह से आप बिल्कुल बता सकते हो. ओके. तो आपको ऐसा नहीं करना है कि मैंने आपको कई बार बोला, आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स, यू डू नॉट हैव टू गो थ्रू द रट्टा मार. नेवर ट्राई टू लर्न और सेंटेंस एंड एवरी टाइम यू हैव टू डिलीवर ऑन. एक्चुअली आप जब कभी भी बोलना चाहते हो इंग्लिश, then it's totally depend on situation and your delivering mood. आपका मूड कैसा है, आप ज्यादा बोलना चाहते हो या कम बोलना चाहते हो. बिकॉज आप यदि कम बोलना चाहते हो तो यस 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 आप ऐसा भी बोल सकते हो, लेकिन आप बहुत ही मजे में इंजॉयबल वे में बोलना चाहते हो आप ज्यादा भी बोल सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ इज वर्क गोइंग? कैसा काम चल रहा है? इट्स गोइंग वेल. इट्स गोइंग ऑल राइट. इट हैज बीन रियली स्ट्रेसफुल. यदि ऐसा है तो, इफ नहीं है तो इसकी जरूरत नहीं है. इट्स गोइंग वेल. एंड इस तरह से आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या बोल रहे हो, किस तरह से डिलीवर कर रहे हो. ओके. नाउ हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन बाय सेंटेंस. एनीथिंग न्यू हैपन लेटली? आजकल में कुछ ऐसा हुआ था क्या? एनीथिंग हैपन लेटली? एनीथिंग न्यू?
Has anything new happened lately? Both are same. Okay, हमारा सेंटेंस क्या करता है, कभी कभी आप ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट नहीं करते हो सपोज, एंड इन योर ओन लैंग्वेज, if you know any language, if you are talking to anyone, then हमारा tone, it's totally depend on your tone also. So that maybe you have not started with क्या या किसी क्वेश्चन टोन से, बट आपका सेंटेंस ये कर देता है कि आप क्वेश्चनिंग टोन में ले आते हो, देन इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू. इफ एनी सेंटेंस इज आस्किंग इन द क्वेश्चनिंग टोन, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट इज आस्क्ड, ये पूछा जाता है, ये पूछा जा रहा है, या हमसे पूछा जा रहा है, या आप पूछते हो. हैज एनीथिंग न्यू हैपेंड लेटली? नो, सेम ओल्ड, सेम ओल्ड, जैसा चल रहा है वैसा का वैसा. नो 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 नो, सेम सेम सेम. मैं got a new job. Okay, so it's totally depend on you. How was your day? How was your day? यानी आप का जब अभी मिलना शुरू किए और आपसे अभी से पहले के टाइम के बारे में पूछा जाता है, हाउ वाज योर डे. ये जनरली इंटरव्यूअर में भी पूछा जाता है, जनरली टॉप में भी पूछा जाता है. आप इवनिंग में मिलते हो, नाइट में मिलते हो, एंड दिन भर के बाद जब आप मिलते हो तब ये पूछा जाता है, हाउ वाज योर डे. इट वाज good, it was busy, it was fantastic, it was so nice, you can say, no problem. How was your day? आपका दिन कैसा रहा, आपका दिन कैसा बीता, आपका दिन कैसा था, अभी तक कैसा आपका. ये पूरी डिफरेंट है, सेम सेंटेंस you have to use. Okay, it was good, it's good, it was good, it was busy, it was so nice, it was pleasant, you can say no problem. Otherwise गुड भी आप बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम. हाउ वॉज योर वीकेंड? वीकेंड आपका कैसा था? इट वॉज रिलैक्सिंग, इट वॉज ग्रेट, मैंने ये बताया. वट डिड यू डू? वट डिड यू डू, आपने कैसे किया? वट डिड यू डू, आपने क्या किया? वट डिड यू डू, वट डिड यू डू. एक्चुअली आपने देखा कि डिड का यूज किया गया, दैट मीन्स इन द पास्ट टेंस. सो नथिंग स्पेशल, कुछ ऐसा नहीं था. व्हाट डिड यू डू, कुछ किया क्या आपने? आपका वीकेंड कैसे बीत गया, क्या आपने कुछ किया? मैंने कुछ ऐसा, मैंने जनरली लोग ऐसे बोलते हैं, यदि कुछ करता है आई हैव टू वर्क, आई हैव टू वर्क, कुछ करने को था मुझे. आई वेंट टू माय पेरेंट्स हाउस फॉर डिनर, यानी मैं कहाँ गया था? पेरेंट्स हाउस गया था. अब बोलोगे सर यदि मैं पेरेंट्स हाउस नहीं जाता हूँ, फ्रेंड्स का हो जाता है, यदि इन मैंने डिक्लेयर किसी गीता सीता मित्र के पास जाता हूँ, कोई नेम है, then you can say also no problem. Okay, ये टोटली आप डिपेंड करते हैं कि आप उस समय सेंटेंस कैसे डिलीवर करते हो. अब नाउ हियर some conversations, conversation between the people. You can catch up with your friend, that means there is a friend, you, if your friend is in front of you and you want to say something, you want to ask him, then one side you are and one another side मे बी योर फ्रेंड, या तो आप यदि आंसर दे रहे हो, देन योर फ्रेंड विल आस्क यू क्वेश्चन. ओके, हे हाउ आर यू, हे हाउ आर यू, आई एम गुड, हाउ हैव यू बीन, आई हैव बीन वेल, थैंक्स, हाउस योर फैमिली डूइंग. The other is Jack just graduated high school and let's say just bought a first car. यानी आप बता रहे हो कि कैसा जा रहा है, आपका फैमिली का कैसा जा रहा है, और आपके फैमिली में जो कुछ भी नया हुआ है वो आपको बिल्कुल बताना है. That's exciting. I am happy for them. बिल्कुल होना भी चाहिए. और ये आपका सेंटेंस यहाँ पर थोड़ा सा बदल भी सकते हो. वेल वेरी वेल डन, गुड, वेरी गुड, नाइस, आप बोल सकते हो. आई एम हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी फॉर द, यानी आप उन लोगों से बहुत खुश हुए, इस लोगों का अचीवमेंट का, इन लोगों ने जिस तरह से आगे बढ़ा. थैंक्स, हाउस हाउ आर डूइंग, यानी दिस इज द नेम. अब उसके बारे में आप पूछ रहे हो कि वो कैसा कर रहा है. नो, शी इज डूइंग ग्रेट, दिस इज फेमिनाइन जेंडर. शी इज डूइंग ग्रेट, शी इज बीइंग really busy at work. Okay, she has been really busy at work. Now, hey, I imagine she still works at the university, right? Right? ये right जो आपका टोन है, it should be in questioning form. यानी टोन बहुत बड़ी बात है, काम करता है जब आप कोई भी सेंटेंस बोलते हो, कोई भी लैंग्वेज बोलते हो. तो yes, she is still teaching there. That's great. And what about you? What have you been up to? Same old. वही पुरानी बातें, वही. I have just been working a lot. How's your work going? It's very simple. यदि आपसे कोई कुछ पूछता है तो आपका भी फर्ज बनता है ऐसा ना
कि आप इंटरव्यू दे रहे हो, आपका फ्रेंड कभी भी डिस्कस करता है, तो आप बिल्कुल फ्रेंकली फ्रेंडली मूड में यदि हो, देन you should ask, यानी आपको भी पूछना चाहिए. You should ask too, because your friends is asking and you are giving answer. It's not so good. ये बहुत ही मजे की बात नहीं है. तो आपको भी पूछना चाहिए. या तो आप पूछते हो तो आपके फ्रेंड यदि सिर्फ जवाब देते हैं तो ऐसा लगता है कि वो सिर्फ मेरी बातों को जवाब दे रहे हैं और वो रिप्लाई नहीं कर रहा है, या तो वो मुझसे कुछ पूछ नहीं रहा है. तो शेयर करना चाहिए, यानी क्वेश्चन भी पूछना चाहिए और आप अपनी आंसर भी देना चाहिए. सेम ओल्ड, आई हैव जस्ट बीन वर्किंग a lot. How's your work doing? It's going great. I just got a promotion. I just got a promotion. यदि प्रमोशन मिल रहा है तो भी ठीक है, यदि नहीं मिल रहा है, आप अच्छा जा रहे हैं तो भी, आपका सैलरी बढ़ गई तो भी, आपका कुछ नहीं बढ़ा तो आपका परफॉर्मेंस यदि अच्छा जा रहा है और आपको अप्रिसिएशन मिल रहा है, तभी ये सब आप शेयर कर सकते हो. इट्स गोइंग ग्रेट, इट्स गोइंग वेरी वेल, इट्स ग्रेट, इट्स गोइंग well, it's good. I just got a promotion. Okay, I just got appreciation from my boss. I just got appreciation by boss. Okay, I just got increment in salary. Okay, दैट्स फैंटास्टिक, कांग्रेचुलेशंस. यानी जहां पर कोई अचीवमेंट आपका फ्रेंड करता है तो ये बातें भी आपके सेंटेंस को बनाता है और आपको थोड़ा स्मार्ट बना देता है और हैंडसम भी बनाता है आपको, क्योंकि आप उन्होंने बहुत अच्छा अचीव किया और आपने कांग्रेचुलेशन नहीं किया, कांग्रेट नहीं किया, तो भी मजा नहीं आती है. थैंक यू और थैंक यू ये बोलना बिल्कुल चाहिए. यदि आप वहां पर हो, यदि सामने वाले तो बोलते ही है, तो आपको भी सीखना है, दोनों तरफ से सीखना है. ये आई एम एक्साइटेड, यानी आपको ये भी बताना है कि आपकी यह बातें अचीव करके मुझे बहुत अच्छा लगा. आई हैव टू जर्न Alice watching on me. It was really good seeing you again. यानी मेरे को बहुत अच्छा लगा. It was good seeing you too. आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा. ये बातें बिल्कुल आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि आप नहीं बताते हो, ये बिल्कुल आपसे ये मजा नहीं आता है, या तो आप बोलो कि आपकी टॉकिंग जो है बहुत इंटरेस्टिंग नहीं बन पाती है. तो मैं दे रहा हूँ, ये आपको हमेशा याद रखना है कि कभी भी आप यदि टॉक करते हो तो टॉक करते समय क्या करो, तो आप अपने आप को मजेदार तब बनाओगे, इंटरेस्टिंग तब बनाओगे यदि आप इंटरेस्टिंग वे में बात करते हो. यानी आप सिर्फ सामने वाला का रिप्लाई ही मत करो, आप उनके साथ क्वेश्चन भी कोई पूछा करो, आप उनके साथ ये भी जाना करो, अपने साथ शेयर भी किया करो. ठीक है, तो इस तरह से आप यदि एक बार मैंने करते हो, बार बार मैं तो इतना ही बोलूंगा जितना सेंटेंस मैंने दिया हूं जो स्क्रीन पर आपके सामने है. इफ यू आर गोइंग थ्रू दिस and you are practicing at the time of working, at the time of studying, maybe if you are on bed and you are alone, then you can practice this also, so that you can improve yourself. आप कभी भी अपने घर में अकेले रहते हो या चलते रहते हो, आप कभी छत पे टहलते रहते हो, उस समय भी आपको प्रैक्टिस करना चाहिए. एंड आपको मैंने पहले भी बताया, जीरो डे क्लास में बताया था कि कोई भी ऐसी जादुई छड़ी नहीं है जिससे आप सीख जाओगे. इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू. इफ यू वांट टू डू, यू कैन डू. Okay, and it is possible if you will do, and so it's 100% correct. You can do very well. आप मुझसे भी बेहतर कर सकते हो. इतना नहीं, आपको और भी सीखने को मिलेगा, क्योंकि लैंग्वेज जो है वो टोटल डिपेंड करता है आप पर, आपके बोलने का स्टाइल पर. आपने अपने घर में आसपास में भी देखते होंगे कि जो कोई भी स्पीकर है जो भी आपके लैंग्वेज में सेम बोलता है, वो भी अलग अलग टोन में बोलता है. तो हिंदी बोलने वाला हो, मराठा बोलने वाला हो, या तो बंगला बोलने वाला हो, गुजराती बोलने वाला हो, भोजपुरी बोलने वाला हो, तमिल बोलने वाला हो, कोई भी लैंग्वेज की बात मैं करूँ. ठीक है, आप इतना ही, आप भी फॉरन किसी पीपल को भी देखते हो जो इंग्लिश में बोलता है, तो वो भी डिफरेंट डिफरेंट वे में बोलता है. तो बिल्कुल आई विल से क्या कि आप बिल्कुल अपने आप को अपना स्टाइल बना सकते हो. यू कैन टॉक वेरी वेल. थैंक यू सो मच.